چیف منسٹر کے لیے نہیں آ سکتے، اور پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے جو چیئرمین رہے ہیں ان کے پہ اوپر بھی ہے کہ وہ سروس آف پاکستان میں نہیں جا سکتے. اس کی تشریح اور ہے، بات اور ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی کویسچنیبل بات تھی کہ وہ نامینیشن بھی جو ہے اب آفٹر بینگ فیڈرل پبلک سروس کمیشن چیئرمین، تو اس پر بھی تھوڑا ایک لیگل لا پوائنٹ اور سروس آف پاکستان کا لفظ لکھا ہے، تو اس پر وہ جو اپنے آرگومنٹس تھے ان کے کہ جی یہ قمر الزمان صاحب کے کیس میں کیسے ہوا، تو ہم نے کہا کہ اگر ایٹ پار رکھیں تو پھر اس بات میں وزن آ جاتا ہے کہ ان کا بھی نہیں ہونا چاہیے. بٹ اینی ویز لیونگ دیٹ اسائڈ، ہمارا یہ خیال ہے کہ معاملات جو ہیں وہ کسی طور پہ سیاسی سطح پر طے ہونے کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ نہیں ہو سکے. حسن صاحب جی سوال نہیں، آپ نے بولا پہلے. بہت شکریہ جی. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے جی کہ آج ہم ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے لیے بھی متفق نہیں ہو سکے اور کسی فیصلے پہ پہنچے بغیر ہمارا یہ سیشن ختم ہوا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک جب ہاؤس چھوٹا ہوتا تھا تو لوگ بڑے ہوتے تھے، اور جیسے جیسے ہاؤس بڑا ہوتا جا رہا ہے لوگ چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں. آج ہم فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. آج ہم کسی چیز پہ بھی اتفاق رائے نہیں کر پا رہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ڈکٹیشن دے کر اپنے ممبران کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے یہ چیز تو ماننی ہی نہیں، اور اس پر یہ دلیل دی جاتی ہے کہ چونکہ ہم ایماندار ہیں اور ہمارا حق ہے کہ آپ ہماری بات تسلیم کریں، اس لیے آپ نہیں کر رہے، ہمارا اتفاق نہیں ہو سکتا. بڑے افسوس ہے کہ آج ہم بغیر اتفاق کے جا رہے ہیں، اور یہ کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں. ملک صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ آپ کی طرف سے ہمیشہ محبت رہی اور اس اسمبلی نے بھی کام کیا، لیکن جس سٹینڈرڈ کا کام ہونا چاہیے تھا وہ نظر نہیں آیا کسی وجہ سے. اور آج جو کمیٹی بنائی گئی، اور اس کمیٹی کو بھیجنے سے پہلے ہی ایک وزیر اعلیٰ، سابقہ وزیر اعلیٰ جو ہیں پرویز الہی صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دی کہ ہم تو سپریم کورٹ میں ہی جائیں گے. تو یہ تو عدم اعتماد ہے اس کمیٹی کے اوپر کہ انہوں نے اپنی ہی بنائی ہوئی اپنے ہی بندوں کی کمیٹی جو ہے اس کے اوپر عدم اعتماد دے دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ نام وہ دیے جو ایلیجیبل نہیں تھے. اگر ہم بحث کرتے تو اس پہ بحث کرتے کہ وہ ایلیجیبل ہیں یا کہ نہیں، اور اگر وہ ایلیجیبل ہوتے تو یقیناً ان کو کنسیڈر کیا جا سکتا تھا. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے ریزنیبل لوگ ہیں، لیکن ہر عہدے کے لیے ایلیجیبل ہونا بھی ایک ضروری تھا اور کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ تھی. تو اس وجہ سے بحث کے باوجود کافی دونوں طرف سے بحث کی گئی، تو اس میں یہ کنسنسس بلڈ ہوئے کہ ہمارا آپس میں اتفاق نہیں ہو سکا. اور یقیناً اب یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا، جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے اکارڈنگلی اس کو ٹریٹ کیا جائے گا تاکہ سب لوگوں کو اس سے بہتر کوئی رزلٹ ملک صاحب انہوں نے آہد چیمہ پہ تنقید کی اور انہوں نے کہا ان کے نیب میں کیسز چل رہے ہیں. یہی بات یہاں پر ابھی حکومتی ٹیم کے لوگ کہہ کے گئے کہ جو آپ کی جب میں نام دیے گئے تھے اس میں یہ ایک شخص نیب کو مطلوب رہے، ان پہ نیب کے مقدمات رہے، اور انہوں نے کہا ہم نے فوکس اس بات پہ کیا کہ نام تبدیل کر لیں. کیا یہ جو سلیکشن تھی کیونکہ نیب کا دوران ذکر آ گیا، کیا یہ ضروری تھا کہ بندہ اس قسم کا سامنے لایا جاتا؟ دیکھیں بات سنیں، میں ان آل فیئرنیس آف تھنگس مجھے بتائیں کہ احد سے زیادہ تھورو پروفیشنل ہم نے اس کو یہاں 4 6 8 سال کام کرتے دیکھا ہے ان ڈفرینٹ اسفیئرز. 36 پوسٹنگز پہ وہ بندہ رہا ہے پبلک لائف کی. عمران خان کی نیب، وہ نیب جس نے اس کو بے گناہ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، کیا فیصلہ کیا دیا نیب نے؟ کیس کیا ڈالا نیب نے؟ 3 سال کی حبس بجا عمران خان کے ہاتھ پہ ہے، اور اس کا کریڈینشیل یہ ہے کہ اس کو میں نے آج تک پارٹیشن ہوتے نہیں دیکھا. اب یہ اگر اس کی ڈسکوالیفیکیشن ہے کہ وہ نیب جس نیب کے ذریعے راجہ بشارت، میاں اسلم اقبال، مخدوم ہاشم جوان بخت 3 سال کابینہ کے ممبر رہے، اس نیب کے باعث 9 کی یہ پارٹی تھی، 31 ممبرز کی پارٹی تھی.
उस नैब ने पहले हमारी पार्टी को ट्रिम किया, उस नैब ने 56 कंपनीज के वो फ्लाउट केसेस जो बेबुनियाद केसेस थे उनकी बुनियाद पर लोगों को चीफ मिनिस्टर्स को लाकर खड़ा कर, किस नैब की बात करके गए वो? ये उसका डिस्क्रेडिट नहीं है, ये तो उसका क्रेडिट है। हमने इनसे ये कहा कि रीजनेबल मैन टेस्ट क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है। रीजनेबल मैन टेस्ट ये होता है कि वंस अ पर्सन इज पुट टू अ जॉब, क्या वो काम कर सकता है? क्या अहद चीमा ने पाकिस्तान की पावर को रेवोल्यूशनाइज नहीं किया? क्या अहद चीमा ने पाकिस्तान में मेट्रो को खड़ा करके दिखाया नहीं अंडर द लीडरशिप ऑफ शहबाज साहब? क्या अहद चीमा को ये मेट्रो का ये जो ऑरेंज लाइन का टास्क मिला, जब वो नहीं था तो क्या था और जब वो था तो क्या था? तो अहद की कॉम्पिटेंस, अहद को जब कोई हैंड टास्क दिया जाए तो उस पर आपने देखना है कि वंस अ पर्सन इज टास्क्ड फॉर अ जॉब, तो वो उसमें अपना वो डिमीनर, वो उसकी अपना पोस्चर, वो उसकी अपनी जॉब की डिस्पेंसेशन, वो ऐसे अगर अहद को एक इलेक्शन की जिम्मेदारी दी जाएगी तो हमारा 100% यकीन था कि अहद बेहतरीन तरीके से उसको अदा करेंगे। बाहर कैफ उनका ये नुक्ता था कि क्योंकि उन पर सिर्फ नैब के केसेस हैं, तो हमने कहा कि ये जो नैब आपकी नैब थी, ये 4 साल पाकिस्तान की तारीख के स्याह तरीन 4 साल थे। इसी नैब ने पाकिस्तान की मईशत को यहाँ पे पहुँचाया। इस नैब के जो पीछे ज़िम्मेदारान बैठे थे और इमरान खान की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की ज़िद पूरी करने वाले लोग, एक तो बात ये थी, इसको आप एक साइड पे कर दें। दूसरा सवाल ये उठा मोहसिन नकवी पे। हमने कहा वो एक जर्नलिस्ट है, नॉन पार्टीजन आदमी है, क्रेडिबल आदमी है, उसके ऊपर कोई नॉन, तो उस पर उन्होंने कोई एक बड़ा सेंसिटिव मैटर उठाकर बात हमारे साथ शुरू की। मैंने कहा देखें, वो तो कोर्ट ने क्वैश कर दिया, वो तो उसके साथ ज्यादती थी। अगर उसके मीडिया चैनल पर कोई एक ऐसी अनप्लेजेंट बात आई थी जिस पर उसने अपनी एक पोजीशन वाजे की, और रिकॉर्डेड मिनट्स हैं पैमरा के रिकॉर्ड में कि कितनी दफ़ा उस बात को कंडेम किया गया, कोर्ट के अंदर वो बात की गई, बार बार की गई, तो सो मीनिंग बाय मोहसिन के ऊपर कोई एतराज़ उनका था नहीं। मोहसिन के ऊपर या तो उनकी कोई इस बात के अलावा कि वो समझते हैं कि कोई पर्सनल लाइक या डिसलाइक है, एक बड़ा मीडिया ज़ार है, वो उसने CNN के साथ काम किया है, दुनिया का एक मोतबर तरीन अदारा है, उसने जितनी उसको इलेक्शनरिंग की तजर्बा उसको हो सकता है बाय वॉचिंग इट वेरी क्लोजली। और दुनिया में ऐसा होता है कि वो लोग जो जिनके कोई नोन पोजीशंस नहीं होते, डिस्प्यूटेड नहीं होते, तो मोहसिन से ज़्यादा क्रेडिबल कौन होगा? और दूसरी तरफ जो अपॉइंटमेंट्स आप कर रहे हैं, मैं हैरान हूँ कि आप अगर ये समझते हैं कि उनकी एलिजिबिलिटी है जो दोनों आपने अपॉइंटमेंट्स की, पहले आपने जो पहले भेजी नसीर खान की, ये केयर किए बगैर कि वो तो ड्यूल नेशनल थे, जब बाद में एहसास हुआ उसको चेंज करने के लिए आ गए। एक नॉमिनेशन आपने की, उन्होंने इनकार कर दिया। और जो तीसरी नॉमिनेशन आप आज कर रहे हैं वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन रहे हुए हैं। वर्ड्स यूज्ड है सर्विस ऑफ पाकिस्तान में, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन है वो दोबारा नहीं आ सकता। अब यहाँ पर आइन में 2 बातें दी हुई, आइन ने ऐसी सूरत इन्विसेज नहीं की, आइन को ये अंदाज़ा नहीं था फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को कि कभी इतने नॉन पॉलिटिकल लोग भी आएंगे। अब हम ये कह रहे हैं कि जब आपने उसकी क्वालिफिकेशंस लेनी है कि कौन हो सकता है, तो वो जो चीफ मिनिस्टर हो सकता है वही हो सकता है ना। एक्टिव सर्विस ऑफ पाकिस्तान में से तो चीफ मिनिस्टर नहीं हो सकता, केयर टेकर लहदा से डिफाइंड नहीं है। 224 में लिखा हुआ है एनी पर्सन, बट एनी पर्सन हैज़ टू बी क्वालिफाइड। ये नहीं हो सकता कि आप किसी इनसे अनसाउंड माइंड को लाकर बिठा दें, किसी ऐसे बंदे को जिसकी एलिजिबिलिटी टू बी द मेंबर भी ना होती है उसको उठा के बिठा के बना दें। तो एलिजिबिलिटीज़ किसी और जगह पर आइन ने डील की हुई हैं। तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात है, हमारा ये मौक़िफ़ था कि जो इम्पार्शियलिटी का टेस्ट है वो वंस पुट टू टेस्ट फिर बात की जाती है। आप अपनी लाइक्स और डिसलाइक की बुनियाद पे बात कर रहे हैं, और फिर तो आपने सनद अता कर दिया हर चीज़ को, आपने सनद अता कर दी कि जो नैब उसके ऊपर केसेस हैं, तो जो बंदा इमरान खान की उस नैब का विक्टिम रहा, आप सारे दोस्त रिपोर्ट करते रहे। मुझे बताएं अहद का गुनाह क्या था? अहद का गुनाह ये है कि भिकी पावर प्रोजेक्ट 22 महीने में खड़ा है। अहद का गुनाह ये है कि हवेली बहादुर शाह खड़ी है। अहद का गुनाह ये है कि 3-3 माह के अंदर मेट्रोज बन गई हैं। कम ऑन यार। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी हम तो सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो क्या आपके पास भी कानूनी ऑप्शन यही मौजूद है? देखिए, इसमें अदालत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। अगर इसमें अदालत, ये आइन में लिखा है, सवाल है जस्टिसबिलिटी का, कि कोई ऐसी बात हो जाए जिसमें
कोई ऐसा पहलू आ जाए जिसके ऊपर अदालत की द कोर्ट शुड ले हिज हैंड्स ऑन द पिटिशन, ये ऐसी पहलू आ जाए। अब यहाँ पर आइन में ये लिखा है कि 224 में तो है कि गवर्नर कंसल्टेशन लीडर ऑफ द हाउस लीडर ऑफ द अपोजिशन। 224A में लिखा है कि जब ये नहीं होता तो वो स्पीकर एक मैटर रेफ़र कर देंगे गवर्नर स्पीकर को, वो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे और 3 दिन के अंदर अंदर वो जो तय करेंगे कि किसी नतीजे पर पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते, और फिर उसके बाद वो भेज देंगे इलेक्शन कमीशन को। अब ये अपॉइंटमेंट अगर तो कोई ऐसी अपॉइंटमेंट हो जाती है जो कि इनएलिजिबल है, हो नहीं सकता, जैसे हम कह रहे हैं कि उनके केस में है, अगर लेट्स से कि उनका को वो अपॉइंट कर देते हैं फॉर एग्जांपल a person who is in active service of Pakistan, तो I might have a problem, I might go to the court, हो सकता है बात। लेकिन इख्तियार इलेक्शन कमीशन का, मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन कमीशन के किए फैसले को मैं तस्लीम नहीं करूँगा। मैं तो पार्लिमानी कमेटी के ऊपर भी देखें, अब उनका स्टेट ऑफ माइंड देखें चौधरी साहब का, ये तरीके इंसाफ का स्टेटमेंट है, अगर मैं हूँ तो सब है, मैं नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं है। भाई देखें ये नाम है, मान लें, अगर आपने नहीं माने तो ये कमेटी कैसे कमेटी के पास, मैं तो सीधा सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। यानी अपनी नामजद करदा कमेटी के ऊपर भी चौधरी परवेज लाई को एतमाद नहीं, नाम खुद गलत देते हैं, और अभी इलेक्शन कमीशन पे मामला गया नहीं है और पहले सुप्रीम कोर्ट की बात लेकर खड़े हो गए, आपने कैसे प्री जज कर लिया? ये तो उनका कंडक्ट है, ये उनका फेयर प्ले है, ये उनकी इमरान खान की टोटल सियासत, सोशल मीडिया पे लगाए पैसे नंबर 1, अरबों रुपए पाकिस्तान की रियासत के, इन्फ्लुएंसर्स रखे केपी की गवर्नमेंट में, ये सारा सोशल मीडिया के ऊपर एक बुलबुला है। दूसरी, नैब उनकी साथ खड़ी हो, फौज पूरी साथ खड़ी हो, जज सारे उनके साथ हों, उनको साकिब निसार साहब मुयस्सर हों तब हो सकता है, उनको जनरल फैज़ हमीद मुयस्सर हों तब हो सकता है, फिर इमरान खान की सियासत रह सकती है। अच्छा ये बताइए, आहत चीमा पर तो उन्होंने इतराज़ लगा दिया नैब का, लेकिन मोहसिन नकवी पर कोई वैलिड एतराज़ नहीं, नॉट एट ऑल जी, वो उनके ऐसे एतराज़ात थे। अगर मोहसिन नकवी हो सकता है कि वज़ीर आला हो, वो भी जिस तरह का एतराज़ लगा हमारी तरफ, अगर वो मान लें तो आइंदा वज़ीर आला जो निगरान आप मोहसिन नकवी को देख रहे हैं, हमारी तरफ से तो ये दोनों नाम जाएंगे आगे। देखिए मैं करने के लिए कहा जाए तो किसको चूज करेंगे? देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि अगर आप मुझसे मेरी चॉइस पूछें तो मैं कहूँगा कि मोहसिन नकवी, क्योंकि इम्पार्शियलिटी का एक आंसर आ सकता है उसमें। मलिक साहब ये बताएं कि जो सर्विस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से आपने जो बात बताई कि वो इन सर्विस हैं, वैसे मेरे लिए दोनों नाम मोहतरम हैं। मलिक साहब वो आपने कहा कि वो इन सर्विस है सुखेरा साहब, तो वो रिटायरमेंट आज लेकर कल नहीं बन सकते, तो क्या यही रूल जो है आहत चीमा के ऊपर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि 2 साल नहीं हुए रिटायरमेंट? हाँ ये ठीक है बात आपकी कि कूलिंग ऑफ पीरियड वाली बात उनके ऊपर भी आती है, इस बात में कोई लेकिन उनकी ये जो 2 साल वाली सर्विस ऑफ पाकिस्तान से रिटायरमेंट और वो तशरी, यस आई टेंड टू एग्री व्हाट यू आर सेइंग। मलिक साहब ये बता दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन के पास यही चारों नाम जाएंगे या 2 नाम हैं, या इलेक्शन कमीशन खुद से भी किसी नाम को अनाउंस कर सकते हैं? किसी नाम को नहीं, इलेक्शन कमीशन के पास यही 4 नाम, उसमें वर्ड यूज्ड है। अब कल जैसे मेरे हवाले से, और मैं उसमें समझता हूँ कि शायद मुझे बताने में कोई, क्योंकि एक आइनी मसला है और बाज़ औक़ात जब आप बात कर रहे होते हैं तो उसका बात करने में और बात को आगे बताने में फ़र्क आ जाता है। तो मुझे एक मीडिया के बड़े मुतबर दोस्त की कॉल आई, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि 2 आर्टिकल्स हैं, एक आर्टिकल 224 है और एक आर्टिकल 224A है। 224 का ऑपरेशन जब वज़ीर आला और लीडर ऑफ अपोजिशन के मुकर्रर करदा वक्त में, जो कि 3 दिन थे, 10:10 पे ख़त्म हो गया, तो 224 का अमलदारी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद आइन में लिखा ये है कि जो प्रोसीजर है वो 224A का फॉलो होगा। तो 224A के प्रोसीजर में जो नाम आएंगे, उन नामों के अलावा कोई नाम इलेक्शन कमीशन पे नहीं जा सकता, ये उसमें लिखा है और उसमें वर्ड यूज्ड है रेफरल। सो ये उसकी पोजीशन है। मलिक साहब ये बताएं कि आपने भी